on the nucleus when alpha, beta, and gamma decay starts. Okay. So first question which comes to your mind is, why do nuclei undergo radioactive decay? We have discussed this in very detail about क्या बोलते हैं radioactivity, about nuclear stability. Can anybody revise this in short? What do I mean by this nuclear stability and all? What factors affect it? हमने डिस्कस किया ना पिछले 3-4 लेक्चर्स हमने यही डिस्कस किया है कि भाई what is neutron to proton ratio, what is stability, how does it affect, blah blah blah. सर हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बेटा, एटॉमिक मास नंबर वाले एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है कि स्टेबल हो जाए। तो वो अल्फा बीटा गामा ये रेस में रेडिएशन एमिट करते रहते हैं जब तक वो स्टेबल नहीं होता है। वो ये कौन बोला? मैं तेजस। तुम तेजस हो? अच्छा, मुझे पता है तुम तेजस हो। चलो, वेरी गुड, which is right, fine. So elements with atomic numbers greater than 83 are unstable and बोला atomic number. Beta, tell me one thing. Atomic number, if it is greater than 83, will not atomic mass number also be bigger? Yes. Because in the periodic table, वो format है, right? Yes. Elements are arranged in the increasing order of their atomic number. But and as the atomic number increases, atomic mass also increases. Why? Yes. Because atomic number is it is the number of protons, and since the number of protons increases, the mass will also increase. Right? एक तरीके से logic देखेंगे तो. Okay. Now, why are they doing though? They're becoming stable. Now, there can be elements with smaller atomic number or atomic mass number because of their neutron to proton ratio. Remember guys, हमने neutron to proton ratio पढ़ा था, देखा था? Yes. तो अगर आपको बोला tritium, what is tritium? किसी को पता है what is tritium? Very good. Isotope of hydrogen. Excellent. Isotope of hydrogen. Now isotope of hydrogen का neutron to proton ratio कितना है बेटा? 2:1. Right? It is a very high number. It is greater than 1. Therefore, it is radioactive. तो ये हमने देखा था ना, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर हाई रहेगा तो एलिमेंट रेडियोएक्टिव हो जाता है। rather not sorry, I'm so sorry not to use the word radioactive, क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो छोटा एलिमेंट है, ये एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर ज्यादा नहीं है, फिर भी रेडियोएक्टिव क्यों है? ओरिजिनल एलिमेंट भले रेडियोएक्टिव ना हो, उसका आइसोटोप हो सकता है। व्हाई? आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स ऑफ द सेम atoms of the same element having different atomic masses. Yeah, and why do they have different atomic masses if their atomic number is same? Different number of neutrons. Absolutely, क्योंकि isotopes के अंदर number of neutrons increases. Now since number of neutrons is increasing, their neutron to proton ratio will change because है ना, प्रोटॉन्स उतना ही है बेटा, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ेगा, है ना? Yes. अच्छा, now these elements may also undergo radioactive decay to become more stable. This is basics which we have learned. Okay, now let's क्या बोलो बेटा? पीछे का स्लाइड देखो ना, लिखना है बच्चे। This is very सारांश, ठीक है। ये को अगर किसी ने क्वेश्चन किया व्हाट इज रेडियोएक्टिव डीके या व्हाई डू एलिमेंट्स अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके, एक मस्त 4 लाइन का आंसर है ये। आप इसको लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लिखना है तो लिख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट एंड वेरी नाइसली गिवन। डन? नो। अच्छा, let me know Tejas when you are done. I hope others are also writing. Yes. No. Who said no? शुभम नहीं है आज लेक्चर में? Yes sir. Yes sir. तुम्हारा आवाज नहीं आया बेटा अभी तक, इसलिए पूछा। मुझे लगा अभी भी होली खेल रहा है। नहीं सर, अभी बोलूंगा। अच्छा, नहीं मत बोलो, आई वाज जस्ट टेलिंग इट दैट ऐसे। Done sir. Done?
Okay. Can we go ahead? जिनका लिख के नहीं हुआ है, can you please take a screenshot so that we can go ahead? Yes. H. H. So we'll see this radioactive decay by alpha, beta and gamma. अल्फा को पार्टिकल बोला है, बीटा को भी पार्टिकल बोला है, गामा को रे बोल रहे हैं. यू हैव एनी आइडिया अबाउट अल्फा बीटा गामा, लाइक प्रीवियसली पढ़ा है या फिर मुझे स्क्रैच से पढ़ाना है आपको? सर हीलियम का 4 सॉरी हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन निकाला ना, और जो न्यूक्लियस होता है तो वो अल्फा रहता है. वो अल्फा को रिजेंबल करता है बेटा, वो Resemble अल्फा करता नहीं है. होता है. ठीक है. Yes. नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई. हम लोग अल्फा को रिजेंबल करते हैं एज अ हीलियम न्यूक्लियस, बिकॉज व्हाट इज हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है. ठीक है, ये सबको पता है. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2. और हीलियम का एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया? 4. अच्छा, अब अगर हीलियम में से इफ आई रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डू आई गेट? आई गेट ओनली द हीलियम न्यूक्लियस. Those 2 electrons were in the first shell. If I remove both the electrons, what will I be left with? I will be left with the nucleus of helium, right? Now, what is there inside the nucleus of the helium? I have 2 electrons and I have 2 protons and I have 2 neutrons. Yes. Yes. Mass number कितना हो जाता है उसके nucleus का? 4. 4. And what is atomic number? Number of protons, तो वो 2 रहेगा. Yes. Okay. Yes. Now this exactly a mass of 4 and a charge of +2. This exactly is the what do we say? Configuration of a alpha particle. That is why we say an alpha particle resembles a helium nucleus. Okay, and that is why we will denote it also like a helium nucleus. Then we come to beta particle. Beta particle के बारे में पढ़ा है कुछ? इलेक्ट्रॉन से. बीटा पार्टिकल रिजेंबल्स अ इलेक्ट्रॉन. तो अभी ये जितने भी एमिशंस हो रहे हैं ना बेटा, ये न्यूक्लियस में से हो रहे हैं. तो डोंट यू गेट अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि भाई ये बीटा अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे पहुंचा? जबकि वी नो इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड. Yes. Yes. यू नो द रीजन व्हाई? You know why beta particle, or what is a beta particle? No? Yes? Maybe? No. Match. A beta particle is formed when a neutron breaks into a proton and a electron. ये हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, ये अपने को बुक में नहीं दिया है, पर ये आपको याद रखना, ये आपको एंट्रेंस वगैरह में या फिर जनरल नॉलेज में काम आएगा. अच्छा, ये दोनों पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल. The third one is a gamma ray. It is a radiation. It is a wave. It is simply electromagnetic wave. It is a energy. It does not have any charge. It चार्ज नहीं है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन रेस जैसे. क्या बोल रहे हो? मैं कुछ चार्ज नहीं होता ना. नहीं, it does not have any charge. It does not have any mass. It is simply a electromagnetic wave. Okay, which contains a very high amount of energy. So whenever gamma is radiated, a huge amount of energy is released. ठीक है, वो सुपर हीरो का मूवीज में देखा होगा ना आप लोग ने. हल्क कैसा बनता है बेटा? गामा रेडिएशन से. तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमको लेबोरेटरी में मौका मिलेगा, हम अपने आप को गामा रेडिएशंस को एक्सपोज करेंगे. No. नहीं, प्लीज मत करना बेटा, आप हल्क नहीं बनोगे, आपने मर जाना है. ठीक है. सर इन तीनों में सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है? gamma rays. Why do you think so? Why gamma rays का सबसे हाई एनर्जी होगा बेटा? Just a thought. Since we are on this point, let us discuss that. Yeah, I'm asking this question to everyone. का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से इक्वल हो जाएगा. Absolutely. Gamma ray is an electromagnetic wave. Electromagnetic wave travels with the speed of light. ठीक है. Now since they are traveling with the speed of light, whatever mass they have, what is the amount of energy they'll be having? E is equals to mc square. MC right? square. Which is a huge amount of energy. Also, it can penetrate even the strongest metals and things. Okay,
वो आपकी बॉडी के भी आर पार जा सकता है, वो मेटल्स के भी आर पार जा सकता है। yes. ओके बेटा, अच्छा इन तीनों में से हाँ वही डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मैं ना आपको नेक्स्ट टाइम लेक्चर पे बोर्ड पे लूंगा ना, तो प्लीज मुझे याद दिलाना, इन तीनों का डिफरेंस आपको लिख के दूंगा मैं एक्चुअली 7:20 को लेक्चर माउंट कर रहा था एंड इट ब्रोक ऑफ। आई विल शो यू हाउ इट ब्रोक ऑफ। मैं इसका फोटो भेजूंगा तुमको। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे स्लो कौन सा पार्टिकल होगा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा। Why do you think alpha particle is going to be the slowest? Because सबसे ज्यादा मास उसका ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब बेटा इनका ऑर्डर देखो, अल्फा बीटा गामा। बीटा हमेशा बीच का रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा या तो अल्फा या तो गामा, सबसे कम या तो अल्फा या तो गामा। बीटा is always going to be intermediate because beta does not have mass but it does have charge। अब ये तीनों पार्टिकल्स या फिर इन तीनों एमिशंस की अगर मैं बात करूं, इन तीनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा? गैमा। नहीं, क्यों नहीं होगा बेटा? वो न्यूट्रल है वो। बिकॉज इट इज न्यूट्रल, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? +2। वेरी गुड। एंड एट द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल? -1 एंड गामा डज नॉट हैव एनी चार्ज। अच्छा, इनमें से पेनिट्रेशन पावर किसका सबसे ज्यादा रहेगा? गामा। अच्छा, और सबसे कम किसका रहेगा? अल्फा। अच्छा, ये सब तुम लोग को पता है। चलो ये तुम रिलेट कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ देयर मास एंड देयर स्पीड्स। आई होप एवरीबॉडी इज ऑन द सेम टॉपिक। ऑल द 100 एंड पेनिट्रेशन क्या? penetration means to go inside something. For example, if I keep a metal plate in front of you, तो वो metal plate में सबसे ज्यादा अंदर कौन घुसेगा? अल्फा, बीटा या गामा? गामा उसके आर पार हो जाएगा बेटा, ठीक है? Yes. अच्छा, Yes. the next thing which I want to discuss is the ionization power. What is ionization power? Any idea? No idea? You either say a yes or a no. An amount of energy required to remove an electron from is called. That is ionization potential, beta. Power and potential are two different things. Power is potential is energy. Power is not energy. Ionization power of an element, of a particle, of a substance, किसी का भी हो सकता है ionization power. Okay, fine. Do you know whenever you are moving in space, you are undergoing friction with the air? No, you do not know this. Friction नहीं होता है एयर के साथ बेटा जब आप चलते हो। स्पेस मतलब नहीं, स्पेस मतलब आपके आसपास की जगह। मैं उसको स्पेस बोल रहा हूँ, उसको स्पेस नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। I will give you an example, and on the basis of that example, you will tell me what is किसका ionization power सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? Listen to the example very carefully. Okay, so there is a peaceful procession going on a road. बहुत सारे लोग चल रहे हैं एक ही ग्रुप में, ठीक है? अब उस ग्रुप के बीच में से ना मैं एक एलिफेंट है और दूसरा एंट है। Did you get the comparison? Elephant and ant? Yes. अच्छा, मैं एलिफेंट को बोलूंगा you pass through this group. इस ग्रुप के अंदर से पास होके बताओ। तो एलिफेंट बेचारा ना चाहते हुए भी अगर उस ग्रुप में घुसेगा तो उसके घुसते ही 3-4 लोग चुप एकदम ऐसे हिल जाएंगे, गिर जाएंगे इधर उधर, राइट? और जब वो धीरे धीरे चलेगा या फिर वो हल्का सा भी मुड़ेगा तो 2-3 लोग गिर जाएंगे। अच्छा, मतलब उसका फ्रिक्शन विद पीपल इन दैट स्पेस इज मोर। अच्छा, एंट को अगर मैं जाने को बोलूंगा तो वो ऑलमोस्ट बिना किसी को छुए पास हो सकती है। अच्छा, जब कोई पार्टिकल, whenever a particle is moving through space or moving through air, what is happening? That particle is coinciding with the constituents of the air. What are the constituents of air? Oxygen, nitrogen, blah blah blah, right? ये सब elements है ना? अब इनमें से अगर कोई किसी से टकराएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देगा इधर उधर, उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा गिर जाएगा, वो आयनाइज हो जाएगा। Please everyone be on mute if you're not speaking. ठीक है? When someone is passing through a medium, it will ionize the atoms of that medium. Ionize in the sense it will either lose electrons or gain electrons. The atoms of those mediums will either lose electron or gain electrons because of the friction between the particle passing through them. Yes. Are you understanding the concept what I'm trying to say? Yes. When a particle is passing through a medium, the atoms of the medium will get ionized because of the friction between the particle and the atoms of the medium. Yes. मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोला कह रहे हैं? Yes.
जब कोई पार्टिकल किसी मीडियम के थ्रू पास हो रहा है, उस मीडियम के खुद के एटम्स रहेंगे और ये पार्टिकल खुद एक एटम है, तो इन दोनों के बीच में टकराव होगा। इनके बीच में जब टकराव होगा तब जो मीडियम के एटम्स है वो आयनाइज हो जाएंगे। यस Yes. ठीक है, आयनाइज मतलब क्या होता है? आयनाइज मतलब उन एटम का आयन बन जाएगा, वो आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर यस, गेन करेगा। आयनाइज। ठीक है, Yes. एवरीबॉडी क्लियर विद यस दिस? सर। यस Yes. So now I'm asking, इन सब में से सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर, मीडियम के एटम्स को आयनाइज करने की क्षमता किसके अंदर सबसे ज्यादा रहेगी? Alpha. अल्फा Excellent, पार्टिकल। excellent, excellent. Why? Because it has big mass. Particle. Because it is elephant and ant is gamma, Gamma. and also it is charged, right? Yes. यस I hope ये concept clear हुआ हो सबके लिए. यस यस Yes. Ach. So just for a revision, I will ask once. Let me see who is available to answer my question. आदित्य पुजारी. मैंने नाम लिया, भाग गया. आदित्य पुजारी. सो रहा है. मैंने मेरे सब नाम लिख लो. मैं इन सबसे बात करने वाला हूँ. कनद बैच 3. कन्नड़ मेरे दोस्त, बोलो कुछ तो बोलो, सो मत. मैंने अभी रिसेंटली देखा तुम्हारे बचपन की फोटो और तुम्हारे बड़ेपन की फोटोज. हेलो, हाँ कन्नड़, हाय, गुड मॉर्निंग मैन. गुड मॉर्निंग. अच्छा, यू आर कन्नड़ और कन्नड़ पेरेंट? कनाथ. अच्छा, ओके, गुड, ठीक है. सो कन्नड़, टेल मी, ये 3 अपने एमिशंस देखे और रेडियो एक्टिव एमिशंस, इनमें से which of the particles or ray is going to have the highest speed? गामा. Very good. Which of the following will have the highest penetration power? अल्फा. Okay. It was gamma, right? हमने डिस्कस किया था ना बेटा, gamma हल्का है तो पास थ्रू हो जाएगा, it will go through the metal and gamma will be stopped at some point of time, right? Yes. अच्छा. And which of them is going to have the highest ionizing power? बीटा. मतलब तीनों में से किसी भी आंसर में बीटा नहीं आया तो एक बीटा बोल देने का. डिस्कस किया था कन्नू, अल्फा. सॉरी. ठीक है, नहीं, इट्स ओके, जस्ट बी अटेंटिव ना बेटा, प्लीज डोंट स्लीप. आई नो Okay. इट्स मॉर्निंग टाइम, आई नो यू डू नॉट वांट टू लिसन टू लेक्चर्स, बट दिस इज व्हाट लाइफ इज. जैसे हमने सोचा कि हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं, वी आर अगेन इन द मिडल, वी आर अगेन बैक टू द प्रीवियस मार्च. फिर से वही केसेस बढ़ना है, ऑल दैट नॉनसेंस. कोई बात सर मेरे नहीं. को एक डाउट है. कौन है तुम? पीयूष. पीयूष डोकले, बोलो बेटा. सर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? देखेंगे ना, आगे जाएंगे ना, उस पे जाते हैं अपन पहले. ठीक है कन्नड़, सॉरी अपना पीयूष, न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टीज बताओ मेरे को. न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है. न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, उसका मास कितना रहता है? प्रोटॉन का इक्वल. ठीक है, उसका मास इज 1 AMU, राइट? द मास Yes. ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1 AMU. व्हाट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन? 1 एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? प्लस +1. ठीक है. व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. Negligible, 0. And what is the charge on electron? -1. If you add a proton and a electron, what? यस सर समझा. समझा बच्चे? मास कितना आएगा? 1. और चार्ज कितना आ जाएगा? +1 -1 0. 0. 0. Yes. ठीक है. यस. अच्छा, सर पर ऐड करने से हम लोग को सिर्फ न्यूट्रॉन तो नहीं मिलेगा. क्या बोल रही हो बेटा? हाँ, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मिलता है, पॉजिट्रॉन वगैरह, वो सब. ठीक है, वो अपन हायर स्टैंडर्ड्स में देखेंगे. ठीक है बच्चे? यस. व्हाट इज दिस? हीलियम. Helium. कहाँ जाके मरूं मैं? हमने क्या बोला था? इसको we will represent it as a helium. Is this helium? अल्फा पार्टिकल. Alpha This- particle. Yes. See, you were not wrong when you said helium, but this is representing a helium nucleus. This is actually a alpha particle. ठीक है? Alpha decay is what? It involves the emission of an alpha particle. So it contains two
and 2 neutrons. Atomic number 2, mass number 4. It is identical to a helium nucleus because helium nucleus also contains 2 protons and 2 neutrons. So we are using this symbol for alpha particle. Okay? What is the mass number? What is the atomic number over here? 2. 2. What is the 2 number are of protons? 2. What is the number of 2. neutrons? 2. 2. 2. Ach. The upper one is mass, the lower one is atomic number. How do you get neutrons from mass number? How do you get number of neutrons from if mass number and number of protons is given? Minus mass number minus number of protons. Yes. Very Yes. good. Very good. Correct. This is the configuration of your alpha particle. So, whenever now X is the parent nucleus, parent element, जिस जो रेडियोएक्टिव जिसके ऊपर हो रहा है, ठीक है? X दिख रहा है सब लोग को इधर? Yes. Yes. Voice breaking when I'm moving the cursor? Yes. Yes. How do you know my voice was breaking? तो ब्रेक हो रहा है ना तो सर. अच्छा, मर जाओ बेटा. ये देखो, X is the parent nucleus. X में से क्या निकला? Alpha. अल्फा. निकला. बेटा, अल्फा अगर न्यूक्लियस या फिर एलिमेंट में से निकलेगा तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो साथ में लेके जाएगा. Yes. Yes. अगर Yes. अगर क्या बोलते हैं, पीयूष डोलके क्लास में से बाहर गया तो वो क्लास में से बाहर क्या क्या लेके जाएगा? अपना सामान सारा लेके जाएगा, बुक भी, पेन भी, Yes, बैग भी, अपना वजन भी, राइट? Yes. राइट. अपने आप को पूरा लेके जाएगा. तो वो गया तो उसका सब कंस्टिट्यूएंट्स भी गया. तो अगर इस एक्स न्यूक्लियस में से अल्फा निकल गया तो अल्फा का जो मास है और अल्फा का जो चार्ज है वो भी निकल जाएगा. Yes. तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेगा, व्हाट हैपेंड टू दैट एलिमेंट? इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डॉटर न्यूक्लियस. पेरेंट में से क्या बना? डॉटर बना बेटा. अभी डू नॉट क्या बोलते, do not debate why it is not called as a son and it's called as a daughter. It is always daughter, parent and daughter. Biology में भी अगर आप देखोगे तो parent nucleus and daughter nucleus आप देखते हैं. ठीक है. So X got transformed into Y, which is a totally new element. It can be radioactive, it cannot be radioactive. दोनों में से कोई भी possibility हो सकती है. ठीक है. Yes. अच्छा, तो जो नया एलिमेंट Y मिला है उसका मास नंबर X से कितना कम होगा बेटा? 4 minus 4 हो जाएगा. उसके मास में से क्या करने का? -4 करने का. क्यों? बिकॉज अल्फा गया तो अल्फा कितना मास लेके गया अपने साथ? 4 लेके गया. और उसके एटॉमिक नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट करने का? 2. क्योंकि अल्फा गया तो क्या लेके गया अपने साथ? 2 प्रोटॉन्स भी लेके गया. और नया डॉटर न्यूक्लियस को मिल गया which is Y. ओके, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है. लिख लिया? No. अच्छा, can we go ahead? Yes. Yes, sir. Achha. So X is the unstable atom. It is becoming a more stable atom Y by releasing this alpha particle. ठीक है. Mass is 4 less and atomic number is 2 less. Alpha takes away its mass with itself and also the atomic number is reduced by 2. ऊपर कौन सा लिखा? अगर एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ तो ये जो Y है इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ मूव होगा कि राइट की तरफ मूव होगा? Left. Left. वेरी Left. गुड, एक्सीलेंट बेटा.
क्योंकि एटॉमिक नंबर कम हुआ है कम Yes. हुआ है Yes. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो अगर कम Increases. हुआ है तो कहाँ पे मूव होगा, लेफ्ट में होगा। Left. Left. समझे क्या रे? Yes. Yes sir. सर ऊपर काउंट क्या लिखा? हेलो हेलो सर वो ऊपर काउंट क्या था? हेलो, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द ऑडियो। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो अल्फा डी के बाजू में काउंट क्या था? ये काउंट कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड, अल्फा डी के कंटिन्यूड, Yes. ठीक है। Stable atom is changed into a more stable atom. Now let us see an example. एग्जाम्पल देखो, रेडॉन का देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये रेडॉन है कि रेडियम है? रेडियम वेरी Radium गुड। ये रेडॉन, ये रेडॉन का सिंबल क्या है? आर एन, R है सिर्फ। हाँ सिर्फ आर है। अरे अच्छा, अब लेट अस सी, इसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकला, आर ए में से अल्फा पार्टिकल निकला, मास नंबर इज 226 एंड एटॉमिक नंबर इज 88। अल्फा पार्टिकल इज रिलीज्ड। ये जो येलो बॉक्स है, दिस यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट पार्टिकल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सपोज इट इज वाई, यू फॉरगेट अबाउट क्या बन रहा है, आर एन बन रहा है, आर बन रहा है, क्या बन रहा है, फॉरगेट दैट, बट कंसिडर इट एज वाई। तो मुझे बताओ बेटा, मैं जिसका नाम लूंगा वही बताना, वाई का मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा, जिसको मैं पूछूंगा वही बताना, बाकी के लोग मत बताना। ऐसे में क्वेश्चन पूछता हूं तो लोग भाग जाते हैं क्या? The best part of taking lecture on laptop is I can see different names, so I can interact with different people. Pratham Chaudhary. Pratham Chaudhary, I think I know him. Pratham. प्रथम चौधरी, लेकिन इसका वॉइस कनेक्टेड नहीं है, तो ये आई थिंक सिर्फ लैपटॉप से कनेक्टेड है। ओके, ये नीचे वाले परेशान हैं। ओके, सिया, सिया यू देयर बेटा? सर एटॉमिक नंबर में दिस इज दो नॉट माइनस। सिया, आर यू सिया? सिया नहीं है सिया, ठीक है। सागर, ओनली सागर, SAGAR सागर, एस सागर। साहिल वलंजू, यस सर। हाय साहिल। साहिल हो कि सागर हो, कौन बोल रहा है? साहिल। साहिल, साहिल मुझे बताओगे ये जो नया एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? सर मास नंबर 222 होगा और एटॉमिक नंबर 86 होगा। एक्सीलेंट साहिल। एनीबडी एल्स हु एग्रीज विद हिम? Yes. yes sir. वेरी गुड, वेरी यस गुड। हाँ, Yes. शुभम, शुभम साहिल ने क्या किया मुझे बताओगे आप? सर 226 में से 4 माइनस किया और 88 में से -2 किया, तो Excellent. 222 और रेडॉन मिल जाएगा। एलिमेंट एक्सीलेंट, रेडॉन मिलेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। When alpha particle is going out, a new atom will have mass number as 222 because char will be less and new atomic number is going to be 86. अब periodic table में देखने का कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है जिसका Radon. एटॉमिक नंबर 86 है, तो ये है भाई आपका Rn। ना रिवर्स करके भी देख लेने का। 222 plus 4 is 226, 86 plus 2 is 88, ठीक है। Yes. It should always be equal, है ना? Mass on left hand side should be equal to mass on Yes, right hand yes. side, and Right hand atomic side. number or charge should also be equal. So we'll go to periodic table and we'll see 86 इसका है A radon, रेडॉन। ठीक है। अगर आप देखेंगे बेटा, रेडियम कहाँ पे था? यहाँ पे था। ये देखिए, Yes. everyone Yes. see the cursor when I'm moving it. यस Yes. After emission of beta particle, इसका position
हाँ मूव हुआ 1 2 2 places to the left. Yes. बेटा इसके लिए तो ये लेफ्ट है ना, Yes. यहाँ Yes. नहीं यहाँ, उसके आगे चला जाए, ऐसे यहाँ मूव होगा पोजीशन उसका। अगर इसका रेडियो एक्टिव एमिशन होगा, इसमें से अल्फा निकला तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। Yes, इसमें sir. से और अल्फा निकला तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एंड सो ऑन। Are you understanding? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Read on. 2.2. When alpha particle is emitted, transmutation is the act of changing an atom into another type of atom. Now, guys, this is transmutation. अभी कैसा है, कुछ रेडियोएक्टिव चीज, कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और कुछ को हम हिंसान करते हैं रेडियोएक्टिव। हम जबरदस्ती बेचारा स्टेबल एलिमेंट को रेडियोएक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? ताकि हमको एनर्जी मिले, ताकि हम बॉम्ब ब्लास्ट कर सकें, ताकि हम इंसानियत को खत्म कर सकें। Nuclear Right? power plant. न्यूक्लियर पावर प्लांट, यस। एटॉमिक बॉम्ब, यस। ठीक है। Yes, sir. So there is radioactivity, there is artificial radioactivity. So transmutation in general means it is changing of an atom into a different atom by release or emission of a radioactive element. Sorry, a radioactive emission. ठीक है? Transmutation simply is changing of one atom into another type of atom. Transmutation. Mutation सुना है ना? Mutation of genes, biology में थोड़ा Yes. देखा होगा तो। Yes. Yes, sir. Transmutation देखिए. Very good. Alpha decay, beta decay, all these are examples of transmutations. Now, बन गया, ठीक है? 222. Now, अगर इसमें से अल्फा निकला तो ये किसमें decay होगा? ना? Nobody will answer. मैं जिसको पूछेगा वही आंसर करेगा। श्रवणी पाटंकर, लेट एडमिशन। श्रवणी पाटंकर। श्रुति अवध। श्रुति अवध, are you by any chance sister of Sahil Awadh? Sahil, do you have a sister in the class? No, sir. No, sir. You both are Awadh, so you must be related. That's not No, true, sir. obviously. Okay, so you are there, Shruti? Yes. Beta, can you tell me radon will transform into which element? Forget about which element. Can you tell me उसका जो अल्फा निकलेगा तो उसका मास और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 218. 218. How did you come to know this? 222 minus 4. Excellent. And what is it going to be the atomic number? 84. Excellent बेटा, excellent. अभी एटॉमिक नंबर 84 पीरियड टेबल में देखो कौन सा एलिमेंट है? So 1 minute. हाँ बेटा, no issues. Your answer is absolutely correct. हाँ, very good बच्चे. टू 218 इसका मास नंबर है. This is 84. Sir, polonium. Polonium. Very good बेटा. Very good. सर पोलोनियम तो ये 218 है, ये आइसोटोप भी हो सकता है ना? सर ये आइसोटोप भी होंगे. Yes. सर आइसोटोप नहीं होगा ना सर, आइसोबार्स होगा। नहीं, मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हो आप. सर आइसोटोप में आइसोटोप नहीं होगा, आइसोबार होगा। ये एलिमेंट जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो? यस सर, यस। हाँ सर, अरे बेटा, आइसोबार ये होगा। ना तो आइसोटोप होंगे ना तो आइसोबार होंगे. These are entirely new different elements altogether. यस नहीं सर, सर, एटॉमिक नंबर पोलोनियम उसका का, सेम नहीं हो रहा है। हाँ पोलोनियम का Atomic mass मास number। नंबर अलग अलग हो रहा है, तो हाँ, वो अरे आइसोबार्स होगा। एग्जैक्टली, हाँ, उसका मास नंबर अलग अलग होगा तो डेफिनेटली इट विल बी आइसोबार. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक ओनली अल्फा डीके, देन दे आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ टोटल डिफरेंट एलिमेंट ऑलटुगेदर. ठीक है, अभी पोलोनियम का मास अलग अलग होगा, वो उसके आइसोटोप या आइसोबार कहला जाएंगे वैसे. ठीक है. तो सर Yes, ये sir, भी yes। पोलोनियम का आइसोबार है ना?
ये पोलोनियम का आइसोबार रहेगा, यस, बिकॉज इसमें अभी हीलियम सॉरी ये अल्फा निकला है, इसके अंदर गामा रेडिएशन भी हुआ हो सकता है। अभी गामा रेडिएशन होगा मतलब क्या होगा, मतलब एनर्जी निकलेगा। एनर्जी कैसे निकलेगा, मास विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, राइट? Yes. तो उतना मास कम हुआ, बट वो मास कहाँ गया पता नहीं चला, वो मास नंबर दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दैट हैज बीन एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ गामा वेव्स। तो वैसे उसका आइसोटोप और आइसोबार बनेगा, ठीक है? Yes. अभी इसका क्या सीन है, पोलोनियम से क्या बनेगा, एक और अल्फा निकल, 214 एंड 82, राइट? Yes. yes, क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, क्या? Lead. PB. Lead. Subtract. पोलोनियम से क्या बनेगा, लेड बनेगा। Lead. 214 will be the mass number and the Yes. atomic number 82. is going to be 82. 82 is lead. सर ये हाइड्रोजन तक होता जाएगा प्रोसेस? नहीं, जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक। ठीक है बेटा, जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक। कभी स्टेबल होगा? 82 लेड स्टेबल हो गया ना, 83 के ऊपर बोलते हैं ना अपन रेडियो एक्टिव होता है। Yes. लेड 214 बनता है इसके बाद, ठीक है? यूरेनियम का अल्फा डीके देखते हैं। ये बेटा ये सब एग्जांपल्स आप लिख रहे हो ना, Yes. Yes. प्लीज राइट इट डाउन, आपको एग्जाम्स में काम आने हैं सर एग्जांपल्स। अच्छा, यूरेनियम 234 से मुझे क्या मिलेगा बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल? होल्ड ऑन, कौन बताएगा? स्नेहा बिल्डर, बैच 1। स्नेहा बिल्डर देर बेटा, ठीक है। अद्वय आचरेकर, यस सर। हाँ जी बेटा, बताओगे मेरे को बनेगा, क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे बाय द रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस अभी आ रहा है बेटा? हाँ ये सर अभी आ रहा है। यस। मास नंबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यूरेनियम में से एक अल्फा निकलेगा तो? सामने है आंसर। सर नहीं समझा, मतलब कैसे? यूरेनियम 23492, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, ओके बेटा? हाँ तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 234 यूरेनियम में से 4 माइनस करने का कितना बचेगा? 230। हाँ, इसका अब ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 92 में से 2 माइनस, तो कितना बचेगा? 90। ये कौन सा एलिमेंट मिला मेरे को? Thor. Thorium. थोरियम। ये बेटा थॉर क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में देखने का, आई गेट थोरियम, एलिमेंट ऑफ थॉर। थोरियम में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या मिलेगा? Radium. वेरी गुड। Radium. मास नंबर क्या हो जाएगा? 226 एंड एटॉमिक नंबर 88 व्हिच इज रेडियम। मिलेगा, फिर उसके बाद पोलोनियम, फिर उसके बाद लेड। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ में आया कि अगर मेरे को जो भी एलिमेंट दिया रहेगा और उसमें से मैं बताएगा कि एक अल्फा निकल गया है, तो कैन यू गेस द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट डॉटर न्यूक्लियर बनेगा? Yes. yes, राइट? क्या करना होगा आपको? मास नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा और एटॉमिक नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना 2 होगा। इजी subtract. है? Yes. Easy peasy. अच्छा, let us move on to beta decay. Beta decay is the emission of beta particles from the nucleus of an atom undergoing radioactive decay. Simple as that. That is beta decay. Yeah. अभी particle क्या होता है? It is a fast moving electron emitted from the nucleus of an atom undergoing radioactive decay. It is a fast moving electron. ये बेटा हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? इन द
extra nuclear part. It's a extra nuclear particle. It is in the orbits. It is revolving, rotating around the nucleus. अभी हम लोग बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं डीके में बीटा पार्टिकल जो होता है इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अंदर कहां से आया? अनस्टेबिलिटी के कारण मेरा न्यूट्रॉन, द न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, -1 इज रिलीज्ड, तो उसका चार्ज 1 से बढ़ जाना चाहिए, राइट? बिकॉज नेगेटिव चला गया। और Yes. उसका मास 1 से बढ़ जाना चाहिए बिकॉज प्रोटॉन प्रोड्यूस हो, नहीं उसका मास चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज न्यूट्रॉन ऑलरेडी उसका मास 1 था। न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास 1 है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +1, ठीक है? तो न्यूट्रॉन वाज न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, प्रोटॉन वहीं पे रहेगा। तो अगर प्रोटॉन वहीं पे है तो उसका क्या हो गया बेटा? चार्ज 1 से बढ़ गया। यस Yes. बट सर, मास नहीं में समझा, फर्क, नहीं मास समझा। में फर्क नहीं पड़ा। नहीं समझा? नहीं समझा सर। No. नहीं समझा। लेट मी गो स्लोली। व्हाट इज अ न्यूट्रॉन? अ न्यूट्रॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? Yes. अच्छा, नाउ प्रोटॉन इज हैविंग चार्ज +1 एंड मास 1। Yes. 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 इलेक्ट्रॉन इज हैविंग चार्ज -1 एंड मास 0। Zero. Negligible. Yes. When neutron is breaking into proton and electron is being released from the nucleus. उसको कोई जगह नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हकल देते हैं वो लोग बाहर। That is called as your beta emission. बेटा जब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दिया तो न्यूक्लियस में क्या बचा? अब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया न्यूट्रॉन को टूट के। Yes. मास तो उसका वही रह गया, 1 रह गया। मास में कुछ चेंज नहीं हुआ बिकॉज न्यूट्रॉन का भी मास 1 था, प्रोटॉन का भी मास 1 है। बट न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज था, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है। तो उस एटम का, उस न्यूक्लियस का चार्ज +1 हो जाएगा, एक्स्ट्रा 1 हो जाएगा। सर न्यूट्रॉन क्यों ब्रेक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी बेटा। उसको न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कम करना है, इसलिए उसको स्टेबल होना है, ठीक है? Yes. सर तो +2 चार्ज होएगा ना पूरा? ना बेटा ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर तो +1 था ही नहीं कभी। एक सर प्रोटॉन वो नहीं, आबाद है। इलेक्ट्रॉन निकला तब। इलेक्ट्रॉन निकला और प्रोटॉन वहीं रह गया, इसीलिए +1 होगा ना बेटा। और प्रोटॉन का +1 चार्ज वो किधर गया? प्रोटॉन का ही +1 चार्ज को तो मैं ऐड कर रहा हूं ना बेटा। दैट इज द I- लॉजिक। +2 चार्ज हो जाएगा ना। अरे मेरी जान, सर मतलब एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अच्छा निकला तो वो रुको। न्यूट्रॉन न्यूट्रल था। Yes. Yes. न्यूट्रॉन से मुझे क्या मिला? प्रोटॉन +1 एंड इलेक्ट्रॉन -1, राइट? इलेक्ट्रॉन -1. Yes. इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचा उसके पास? Proton. प्रोटॉन. +1, सिर्फ एक ही बचा। Yes. आज कितने से ऐड करूंगा मैं? +1 से। +1 यस, नो, मे बी। यस Yes. अच्छा, okay, this we discussed. Electrons are outside the nucleus. Beta decay occurs when a neutron turns into a proton and an electron. Neutron will break into proton and electron. Nucleus has one few neutron but one extra proton, है ना? Neutron Yes. कम हो जाएगा but proton बढ़ जाएगा. Atomic Yes. number will increase by 1 and the mass number will remain the same. Mass number change क्यों रहेगा? Because neutron से proton हुआ, mass उतना ही रह गया, बस charge उसका बढ़ गया. अरे Yes sir. Yes. Yes. फिर पीछे लिखना है। पोलोनियम का बीटा लिखना है वो? यस Yes. लिख लो बेटा, लिख लो सर इसके पीछे का भी. इसका पीछे का भी लिख लो। ये था इसके पीछे। इसके पीछे. हाँ. Yes. जल्दी जल्दी लिखो। किधर? Yes, समझ रहे हो ना? yes. वेरी गुड।
Done? Done, sir. Yes. Done, sir. Match. Done?